Now once again we are starting from the very basics, which is your esports ecosystem, since we are going to study esports business management. So before going to deep dive into business or marketing, human resources, team management, operations, or XYZ, we have to understand the esports ecosystem. Correct? Okay. Correct, Narayan? So we need to understand how this esports Yes. ecosystem works, where your top priority will be always government laws and regulations. Because without government rules and regulations, we cannot do anything. Ultimately, we have to go to the government to take some permissions, or maybe for different kind of thing. For example, licensing is one thing, right? Offline events, if we are doing, then we need security clearance. Correct? So these things happen. So that's why Yes. government laws and regulations comes at the number one priority, where tourism bureau and legal, if somebody is visiting at your venue, if you are doing an offline event, right? So there will be a lot of people who are going to travel from A place, B place, C place. Correct? So that government have to make sure, okay, somebody, like, they are in a good condition, they do not get any kind of troubles. Okay, that's why government comes into picture. Also legals where rights, ethics, all these things, in game ethics, like we have seen multiple things in the games. Okay, there are certain things that government make rules. Also the data breaching things. Okay, the publishers who are taking data from us, how they have to use that data. Also in app purchases rights, we are going to make some payments over these platforms, right? All these platforms, most of the platforms are international. What happens if they use our credit card, debit card, or our UPI details for different purposes? That will never happen, right? We know there are different kind of things happen online right now these days. So that's why government comes into picture, where government have a, rules and regulations that publishers and other people, they have to follow all these terms and conditions. Okay, now let's talk about first thing, which is your sponsorship and investors. Sponsors and investors. So in this diagram, of course, we will start from the government regulations. Ultimately, government rule all these things. Okay, then of consulting agencies, venture capitalists, in sponsors, there will be consulting firms, consulting agencies, जो कि आप लोगों को support करती है. For example, क्राफ्टन क्राफ्टन की भी एक इन्वेस्टर है, आपने देखा होगा. करेक्ट, राइट? एंड सिमिलरली एजेंसी, हमारी क्राफ्टन की एजेंसी कौन है इंडिया में? नॉर्डविन एंड दिस, आई फॉरगॉट द नेम, टेसरेक्ट ई स्पोर्ट. करेक्ट? सो ये दो मेन एजेंसीज है जो कि उनका यहाँ पे धंधा है, उसको ज्यादातर संभालते हैं. ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, जो कि आते हैं और स्पॉन्सरशिप, इनको इन्वेस्टमेंट्स देते हैं पब्लिशर्स को या फिर एक्सवाइजी पर्सन को. एंडेमिक स्पॉन्सर्स, जो कि आपका आईक्यू है. फॉर एग्जांपल आप देखोगे बीजीआईएस, ऑफ कोर्स क्राफ्टन हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्राफ्टन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. करेक्ट? और रियॉट गेम्स हैव अ लॉट ऑफ मनी. करेक्ट? इन सबके पास में उतना पैसा है कि वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नो डाउट. बट दे गो फॉर द स्पॉन्सर्स. द रीजन इज क्वाइट सिंपल, दे हैव टू शोकेस कि ओके, some other entities are also with me. We know this, क्राफ्टन के पास में पैसा है, रियॉट गेम्स के पास में है, वेल्व के पास में, कॉर्पोरेशन के पास में है, सबके पास में पैसा है, एंड वो एक छोटा मोटा टूर्नामेंट है, वो आराम से करवा सकते हैं. दैट इज नॉट अ बिग चैलेंज फॉर देम इन इंडिया ओनली, राइट? सो टेक्निकली दे हैव टू शोकेस, दे थर्ड पार्टी वो स्पॉन्सर्स लेते हैं, चाहे वो रेडबुल हो या फिर वो आईक्यू हो या फिर कोई पीसी का ब्रांड हो या फिर कोई गैजेट्स और डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी हो. ओके, द रीजन इज क्वाइट सिंपल, दे हैव टू शो सम ट्रस्ट. ओके, वी आर अ पर्सन हु इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट अदर पीपल्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन आवर इकोसिस्टम. ओके, देन वंस अगेन नॉन एंडेमिक. ओके, जैसे कि रूटर स्पॉन्सर करता है. करेक्ट? रूटर ने बहुत सारे स्पॉन्सर्स करे, और XYZ, रेडबुल इज कमिंग फ्रॉम यस, ऑफ कोर्स स्टार स्पोर्ट्स इज वन, राइट? सो ये सब आते हैं. ओके, नाउ ये इन्वेस्ट, ये कितने तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? पहला, प्राइज मनी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एंटिटीज की एलिजिबिलिटीज को, अगर आप क्राफ्टन इज कैपेबल इनफ और रियॉट गेम्स इज कैपेबल इनफ और नॉट, उन सब चीजों के लिए स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, राइट? देन वी कम्स टू द ऑपरेटर्स. इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सरशिप्स किस किस में जाती है? यू कैन सी द ग्राफ. प्लेयर्स एंड कोचेस एंड मैनेजमेंट में क्या जाती है स्पॉन्सरशिप? फ्रेंचाइजीज, टीम्स एंड क्लब्स में जाती है इन्वेस्टमेंट्स, राइट? वीडियो गेम्स में इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, टूर्नामेंट्स एंड लीग्स में लगते हैं. ओके, ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया में भी लगते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कम्स एट द टॉप. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एंटिटी शुरू कर रहा हूं. ओके, समझना नाउ व्हाई स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टर्स कम्स एट द टॉप लेवल. मैं, फॉर एग्जांपल, मैं एक गेमिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूं. करेक्ट? नाउ आई हैव माय ओन मनी, दैट इज माय मनी, नॉट कंपनीज मनी. अब मैं क्या करूंगा, अपने पैसे को उस कंपनी में डालूंगा. मैंने एक कंपनी बनाया, एक एंटिटी फॉर्म किया. नाउ आई एम द इन्वेस्टर फॉर माय ओन कंपनी. करेक्ट? आकाश, समझ में आया? हेलो आकाश. हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है. Okay, so why now you understand sponsors and investors?
नाउ आई एम इन्वेस्टर फॉर माई ओन कंपनी, अब मैं 4 लोगों से और इन्वेस्टमेंट रेज कर सकता हूँ, करेक्ट? So that's why sponsorship and investors comes at the top level. Okay. Now your second will be your operators. Okay, you can see the graph. Government, sponsors and investors and operators. ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? ये this is of course this is between sponsors, investors and government rules. बट दिस इज कंप्लीटली अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है? ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स टूर्नामेंट एंड लीग ऑपरेटर्स, ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी यस, मर्चेंडाइज वाले, ठीक है, जितने भी है आपके, ठीक है? तो ये सारा। नाउ competition infrastructure, esports associations and federation, competition integrity, competition organizers. We have seen that esports federation of India, correct? Dubai federation of esports. Okay, so all these companies are operators technically. Okay, जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, बट समहाउ दीज पीपल आर ऑपरेटिंग, क्योंकि ये जाते हैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। ऑफकोर्स ये सब प्राइवेट एंटिटीज है, बट स्टिल ये लोग जाते हैं एंड अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बना करके रखते हैं ताकि कि लोग इनकी बातें सुने। सो दैट्स हाउ ऑपरेटर्स वर्क। अब ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, ऑफकोर्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, नो डाउट। इनके पास में ज्यादा, इनके पास में वो नहीं रहता है, ज्यादा इनके पास में कैपेसिटीज नहीं होती है, ठीक है? बट ये डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये कुछ इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं। जैसे कि रियल मनी गेमिंग में एफवी से तो फेडरेशन, ड्रीम 11 का फेडरेशन बनाया हुआ था, फैंटेसी स्पोर्ट्स, राइट, करेक्ट? वैसे ही अपना फेडरेशन बनाया हुआ है इसके लिए, क्रिप्टो के लिए बनाया हुआ है, करेक्ट? सो ये सारी वो एंटिटीज है जो कि ऑपरेट करती है, बट इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है? तो आप ई स्पोर्ट्स फेडरेशन को देखोगे ज्यादातर तो वो टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज करती है, करेक्ट? और थोड़ा बहुत वो टीम्स को स्पॉन्सर कर देती है, ठीक है? उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग में वो लोग पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, ठीक है? नाउ थर्ड थिंग इज प्लेयर्स, फ्रेंचाइजीज, वीडियो गेम्स, टूर्नामेंट एंड लीग्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? ये सब एक ही लेवल पे आते हैं। द रीजन इज, कल हम जो फर्स्ट डे 1 था, हम लोगों ने वहां पर उस दिन ही पढ़ा था डिपेंडेंसी, अग्री, करेक्ट? नाउ यू अंडरस्टैंड वीडियो गेम इज अ सेंटर, व्हाई, ठीक है? सारी चीजें इसी के अराउंड चलती है, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, गेमिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये गेमिंग हार्डवेयर कौन से हो गए, डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, इट कैन बी अ मोबाइल फोन, पीसी, राइट, कंसोल, PS5, जो भी है, ओके? नाउ आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई दिस कम्स इनटू पिक्चर। एसीटी फाइबर आपने देखा होगा, एसीटी फाइबर बहुत सारे टूर्नामेंट्स स्पॉन्सर करता है, देखा है ना? एसीटी फाइबर ने टूर्नामेंट्स स्पॉन्सर किए काफी सारे। और चलो ठीक है, स्पॉन्सरशिप को हटा देते, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स, जो गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स है, उनको प्रमोशंस देते हैं, करेक्ट? द रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी यूज होता है। हमारे पास में इंटरनेट नहीं होगा तो गेम चलेगा नहीं, करेक्ट, राइट आकाश? सो दैट्स व्हाई दिस कम्स, क्योंकि हार्डवेयर, ऑफ कोर्स आईक्यू इज अ हार्डवेयर मेकिंग कंपनी, दिस डेल इज अ हार्डवेयर मेकिंग कंपनी, राइट? तो ये सब लोग हार्डवेयर बनाते हैं, करेक्ट? सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लस जो आपका गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है। हाँ बताओ। जियो गेम्स बेसिकली नहीं, जियो गेम्स को किसमें क्यों है, जियो गेम्स इज नॉट अ ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, दैट इज अ कैजुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म, ओके? ऑफ कोर्स वो लोग ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, टूर्नामेंट्स करवाते हैं, बट उनका ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म नहीं है टेक्निकली देखा जाए। एंड जियो फाई की अगर बात करोगे, जियो जो वाईफाई आता है, फाइबर आता है, जियो फाइबर, तो हाँ वो इसमें आएगा आपका गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है, तो गेमिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट दिस मींस, अरीनाज, राइट? ऑफलाइन अरीनाज होते हैं ना, करेक्ट? लैन इवेंट्स होते हैं, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर, ठीक है? समझ में आ गया? गेमिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके, गेमिंग सॉरी इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉट इट? नाउ फ्रेंचाइजी, ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी कितनी सारी टीम्स है, फेनेटिक फॉर एग्जांपल, तो है तो वो बाहर की टीम, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है? फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर, जिसमें कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ के लोगों का होता है, कुछ वहां के लोगों का होता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेवल गेमिंग विच इज अ कैफे, राइट? सो कैफे शुरू का एक जगह से हुआ, लेकिन लोगों ने अलग अलग जगह पर अपनी फ्रेंचाइजीज खोल रखी है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो फ्रेंचाइजीज, टीम्स, वी नो टीम्स, देयर आर टीम्स, अ लॉट ऑफ टीम्स, जिनका हर कंट्री में अपना अपना लाइनअप्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन, राइट? एंड क्लब्स, ई स्पोर्ट्स क्लब्स, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो ये एक लाइक यू नो सेम सेगमेंट है, जिसमें कि आप फ्रेंचाइजीज जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग से रिलेटेड, जो टीम्स अपनी सब्सिडरीज बना करके रखती है, एंड जो अपने अपने क्लब्स बना करके रखते हैं, ठीक है? सो इसमें क्या आता है, मैनेजमेंट एंड शेड्यूल। ये लोग यही करते हैं ज्यादातर, मैनेजमेंट करते हैं एंड शेड्यूलिंग करते हैं, क्योंकि व्हाट वी हैव टू प्लान, व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर, राइट? एंड एनालिटिक्स, ओके?
थोड़ा डेटा एनालिसिस करती है ये एजेंसीज, क्योंकि फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, उसने बताया कि इस टूर्नामेंट में इतने इतने व्यूज आए थे, जैसे कि मैक्स लेवल गेमिंग, राइट, और फॉर एग्जांपल देयर आर और एएफके गेमिंग, राइट, वो क्या करते हैं, वो डेटा पब्लिश करते हैं अपने सोशल्स पे, अपने वेबसाइट्स पे और अपनी इन्वेंटरीज पे। द रीजन इज बिकॉज दे आर फ्रेंचाइजीज, टीम्स एंड क्लब्स। एएफके इज अ क्लब, ओके, यू कैन कंसीडर दिस, दे हैव अ ह्यूज ऑडियंस, राइट। क्लब का मतलब क्या होता है, क्लब इज बेसिकली मेड फॉर पीपल where they can come and get some knowledge or they can exchange their thoughts. This is the club. Basic idea of the club, simple. Okay, now AFK is a प्लेटफॉर्म जिसमें कि इंडिया में सबसे बड़ा अगर गेमिंग ई स्पोर्ट्स न्यूज का प्लेटफॉर्म है तो वो AFK है। वहां पे लोग आते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं सारी की सारी। लेट्स टॉक और लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स, लेट्स टॉक ई स्पोर्ट्स, मैक्स लेवल गेमिंग, ओके। तो ये सारे वैसे प्लेटफॉर्म है, ओके, जो कि क्लब्स की कैटेगरी में आते हैं। टीम्स भी नो, एसएटीयूएल है और XYZ, फनेटिक और वाइटलिटी, ऑल दीज, ठीक है। तो दीज आर द टीम्स। फ्रेंचाइजीज ऑफ कोर्स, जैसे Cloud9 है, ठीक है, उसकी फ्रेंचाइजी इंडिया में कुछ टाइम पहले थी, ओके, फनेटिक की भी थी। तो ऑल दीज आर फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। नाउ प्लेयर्स, कोचेस एंड मैनेजमेंट, ओके, वी नो दिस, इसमें कुछ खास नहीं है। प्लेयर यूनियंस, टैलेंट एजेंसीज, कम्युनिकेशन टूल्स, स्ट्रीमिंग टूल्स, ट्रेनिंग एंड कोचिंग टूल्स, परफॉर्मेंस सपोर्ट स्टाफ। तो ये जो है, ये जो प्लेयर्स एंड कोचेस एंड मैनेजर्स वाला जो है ना सिस्टम, उसमें हमारे क्या आता है, प्लेयर यूनियंस, ताकि प्लेयर्स अपना अपना, सबने प्लेयर्स ने कम्युनिटी बना रखा है। कोई प्लेयर एसएटीयूएल से निकलता है तो वो एबीसी ई स्पोर्ट्स में चला जाता है, करेक्ट। एबीसी ई स्पोर्ट्स से निकलता है तो वो XYZ ई स्पोर्ट्स में चला जाता है। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, दे हैव अ यूनियन। अदरवाइज अगर एक यूनियन हम लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे ई स्पोर्ट्स वाले, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम राइवल्स जो कि कभी एक दूसरे के साथ में मर्ज नहीं होते, बट वी हैव सीन एस पावर इज अ गुड एग्जांपल। वो ऐसे सोल में भी खेला है, फिर वो गॉड लाइक में, पहले गॉड लाइक में था, फिर सोल में आया, सोल से फिर वो दूसरी टीम में गए, फिर उसके बाद में गॉड लाइक में आ गया। सो इट्स अ लूप, ओके, बट वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि उनके यूनियंस की वजह से, ठीक है। टैलेंट एजेंसीज, ट्रिनिटी गेमिंग इंडिया, ओके, जो कि टैलेंट एसएटीयूएल ई स्पोर्ट, S8UL जो है ना, कंटेंट क्रिएशन एजेंसी, राइट, ठीक है। तो टैलेंट एजेंसी है वो, करेक्ट, जिसका काम है कि इन ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को संभाल के रखने का और इनको फ्यूचर में आगे बढ़ाने का। कम्युनिकेशन टूल्स, डिस्कॉर्ड, करेक्ट, Discord is a communication tool, right? Streaming tools, of course, YouTube, Streamlabs, all these platforms, okay? जिससे कि आप स्ट्रीम करते हो अपने गेम प्ले को, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाते हो, ठीक। इस ट्रेनिंग एंड कोचिंग टूल्स दैट पीपल फॉलो, वो मैप्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर जो भी XYZ है वो सारा कुछ यूज करते हैं। एनालिटिक्स, Streamlabs, राइट, AIMLabs, परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट स्टाफ, ओके। सो वी हैव सीन लाइक पीपल जो कि सपोर्ट में काम करते हैं, राइट, और उनकी परफॉर्मेंस, जिसको हम कोचेस, एनालिस्ट वगैरह हम लोग बोलते हैं, ओके। नाउ यू देखो, इन्वेस्टर्स यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, करेक्ट। प्लेयर्स प्राइज मनी अर्न करते हैं तो वो किसके लिए होता है, स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनका आरओआई नहीं। सिमिलरली कुछ पैसा वो फ्रेंचाइजी टीम को जाता है, करेक्ट। नाउ व्हाई बीटा टेस्टिंग, वी हैव सीन, सॉरी चलो इसको छोड़ दे, अभी यहाँ पर ही रहते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी टीम्स और क्लब्स को प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेयर्स, कोचेस एंड ये सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ टीम्स, प्लेयर्स और क्लब्स, ठीक है, ये लोग ये वीडियो गेम्स खेलते हैं, ओके। नाउ वीडियो गेम्स जो पब्लिशर्स होते हैं वो टूर्नामेंट एंड लीग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके। और जो टूर्नामेंट्स एंड लीग्स जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स और लीग ऑर्गेनाइजर्स है, वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया करते हैं, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मीडिया एंड दिस। नाउ ऑपरेटर्स, ऑफ कोर्स ऑपरेटर्स, somehow operators organize tournaments, ओके, समहाउ बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स है वो कुछ अपने बनाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल एज 16 ही होना चाहिए, वी नो दिस, एक मिनिमम एज क्राइटेरिया है ई स्पोर्ट्स में, दैट इज 16 ईयर, करेक्ट। मे बी वो 18 भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जो ऑपरेटर्स है उन्होंने क्या है, कुछ अपने रूल्स बनाए कि भाई हम देखो, हम एज अ, वी आर नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी, बट हम अपने ओपिनियंस देते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा थोड़ा रुतबा है मार्केट में, तो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर की एज है वो मिनिमम 16 ईयर्स ही होनी, करेक्ट। तो सेम गवर्नमेंट ने बोला इट्स ओके फाइन, वी आर रेडी टू टेक इट, ठीक है। तो वैसे नाउ ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया में, ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिस्ट, न्यूज साइट्स जो रहती है आपकी, ठीक है। ऑफ कोर्स वंस अगेन इसमें भी एनालिटिक्स यूज होता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग टूल्स होते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट यूज होता है, एंड पब्लिक रिलेशंस कि कभी व्हाट इज दिस पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू यू आर इनवाइटिंग समवन इन अ इवेंट। जैसे आपने देखा ना कि कुछ इवेंट्स में CM और वो सब आए हैं, राइट, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया,
करेक्ट, वन सेकंड, राइट। सो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? नाउ सीएम इज नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ मनी, राइट राइट। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? कि उनके पब्लिक रिलेशंस अच्छे हैं। ओके, दैट्स हाउ योर पीआर वर्क। कभी कभी आप सोशल मीडिया बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाते हो, करेक्ट, तो राइट, ठीक है, क्रिकेटर्स भी आते हैं ऑफ कोर्स। सो दिस इज योर पब्लिक रिलेशंस, दैट्स हाउ ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया वर्क। ओके, नाउ देखो, अगला है डेवलपर्स एंड पब्लिशर्स। ओके, डेवलपर्स एंड पब्लिशर्स बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, या तो गेम्स पब्लिश करते हैं। पब्लिशर इज समथिंग विच इज मेड द गेम, राइट। वीडियो गेम्स ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। ओके, नाउ पब्लिशर्स एंड डेवलपर्स। पब्लिशर्स का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने का। आई एम अ पब्लिशर, आपने एक गेम बनाया, गिव टू मी, आई विल पब्लिश ऑन माई सोशल मीडिया और जो भी मेरे इन्वेंटरीज है, ठीक है। सो सिमिलरली डेवलपर्स, ऑफ कोर्स देयर विल बी ह्यूज डेवलपर्स। अभी क्राफ्टन इज अ पब्लिशर। हाउ? क्राफ्टन ने अपना इंडी गेम्स के लिए अपने फंड्स निकाले हैं, अगर पता होगा तो, ठीक है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम इंडिया में जितने भी तुम लोग हो, तुम गेम्स बनाओ। करेक्ट, ओके, सो दैट्स हाउ। अब देखो, पब्लिशर्स वीडियो गेम्स डेवलप करते हैं, ठीक है, पब्लिशर्स वीडियो गेम्स डेवलप करते हैं। नाउ प्लेयर्स बीटा टेस्टिंग करते हैं। अब देखो एक चीज देखना, इसमें तुम्हें समझ में आएगा, क्लियरिटी मिलेगी। वैलोरेंट मोबाइल हमारे पास में नहीं है एक्सेस, करेक्ट, चाइना के क्रिएटर्स को दिया, साथ साथ में उन्होंने इंडिया के भी कुछ लोगों को दिया है। स्नैक्स इज वन ऑफ द गाय। ओके, राइट आकाश? ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। बीटा टेस्टिंग जब भी होती है तो डेवलपर्स क्या करते हैं? ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के पास में आते हैं, ठीक है, ऑन डेवलपर्स एंड पब्लिशर्स ऑन वीडियो गेम। हम ये यहाँ पे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, टेक्निकली यू कैन टेक इट एज अ वन प्लेस। ओके, ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए उसको यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। नाउ डेवलपर्स ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, ठीक है, ओके, डेवलपर्स ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स ऑल्सो। ऐसा तो है नहीं है कि वो सिर्फ करते हैं। अगर आपका वीडियो गेम है, अगर मैं स्काई स्पोर्ट्स की बात करूं, तो वो एक वीडियो गेम है क्राफ्टन का, विच इज योर बीजीएमआई, एंड रियोट गेम्स का योर वैलोरेंट। तो वो दोनों करता है, वो टीओ है, वो ऑर्गेनाइज करता है वीडियो गेम्स के टूर्नामेंट्स एंड लीग। सिमिलरली रियोट गेम्स का अपना टूर्नामेंट होता है वीसीटी, क्राफ्टन का अपना खुद का बीजीआईएस होता है, ओके, बीएमपीएस। ऐसे हर गेम का जितने भी लीग ऑफ लेजेंड या एक्सवाइज, वो सब डेवलपर्स है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन सी ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वेन्यूज, मल्टीपर्पज वेन्यूज, ई स्पोर्ट्स कोलैबोरेशंस, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये इसके मेन फेजेस होते हैं। मतलब अगर आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसमें ये ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वेन्यूज, अरीनास जिसको हम लोग बोलते हैं, आप क्रिकेट के मैदान में तो नहीं करवा सकते हो, राइट। मल्टीपर्पज वेन्यूज, फॉर एग्जांपल आपने देखा ना, जैसे जेएलएफ, नॉट जेएलएफ, दिस प्रगति मैदान, दैट इज अ मल्टीपर्पज वेन्यू, करेक्ट, राइट, दैट इज अ मल्टीपर्पज वेन्यू। इट्स नॉट ओनली फॉर ई स्पोर्ट, बट आपने एक ई स्पोर्ट्स एरिना है जो कि आई थिंक बैंगलोर में है और हैदराबाद में है। आई एम नॉट श्योर कि किस लोकेशन पे, मे बी इन हैदराबाद, और हाँ, जो कि स्पेसिफिक ई स्पोर्ट्स के लिए ही बनाया गया है। ओके, दैट इज नॉट अ मल्टीपर्पज वेन्यू, दैट इज ओनली फॉर ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स कोलैबोरेशंस, नाउ यू कैन सी ई स्पोर्ट्स कोलैबोरेशंस। आपने देखा है कि बहुत सारे जब गेम्स ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये रेलवेज को पूरा कर देते हैं ब्रांडिंग के साथ, करेक्ट, पोस्टर्स एंड ऑल। सो दैट इज योर ई स्पोर्ट्स कोलैबोरेशंस, ओके। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में दिस रोनाल्डो वाज द ब्रांड एम्बेसडर, उससे पहले नेमार था, करेक्ट। सो दीज आर द इवेंट्स के लिए योर कोलैबोरेशन, राइट, ओके। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ऑफ कोर्स होटल्स एंड टूरिज्म तो ऑफ कोर्स प्रमोट होता ही है। पीपल विजिटेड ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, रियाद में हुआ, इंडिया से कितने सारे लोगों ने विजिट किया, करेक्ट, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस वर्क। Now your so your last segment is fans. Fans once again are related to your players and coaches. They love players. That's why they like esports teams indirectly. Okay, they like video games because they play them, and after playing them only they are able to recognize. Now, of course, we know Crafton is a publisher, and we know him really well as a fan. क्योंकि I am a fan of Crafton. जो भी क्राफ्टन के नए गेम्स आएंगे, मे बी आई विल ट्राई देम, राइट। देन वंस अगेन इफ वी कम्स टू द टूर्नामेंट्स एंड लीग, सो बीजीआईएस, बीएमपीएस और वीसीटी जितने भी मैचेस होते हैं, पीपल परचेज टिकट्स, द फैंस डायरेक्टली परचेज टिकट्स, ओके। देन they subscribe the YouTube channels, Sky Esports, Uptrust Esports, or XYZ. Crafton also having Crafton India Esports, right? So fans only subscribe them, okay. So that's why fans come at the
last segment where these are the other things like cosplay, guide and forms, betting and fantasy that we do not talk because we do not support. Virtual items on marketplaces where merchandise और ये सब कुछ हम लोग परचेज करते हैं, बाय करते हैं. ओके, मॉडिंग गेम्स, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में. फेस्टिवल्स एंड कन्वर्सेशंस, कन्वेंशंस. सो बेसिकली फेस्टिवल्स के टाइम पे भी हम लोग इवेंट्स वगैरह जो भी पब्लिशर्स और ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट वी पार्टिसिपेट इन देम एंड वी हेल्प देम. ओके, सो ये बेसिकली पूरा हमारा ई स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है. नाउ लास्ट थिंग इज योर एनजीओस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें कि बेसिकली हमारे फ्री में काम करने वाले लोग आते हैं. वंस अगेन फेडरेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स, क्योंकि वो एक एनजीओ की तरह काम करते हैं. ओके, अदर कॉलेजेस दे स्पॉन्सर, क्योंकि हमारे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आप आकर के टूर्नामेंट्स होस्ट करो या फिर हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेट करो अबाउट ईस्ट. ओके आकाश, गेट इट? आवाज आ रहा है मेरा? ये समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ, करेक्ट, इकोसिस्टम. ओके, अभी इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? नहीं. ओके, वो लोग भी प्रॉपर लैंग्वेज का, ओके, बहुत लोगों को पता है एआईयूबी ठीक है अपना निकल, बट उसमें ऐसा है सिर्फ यूनिवर्सिटी. ओके, वो भी शायद गवर्नमेंट. हाँ, मतलब एनजीओ में देखो, पहला तो उनका मेन पार्टनर, हाँ, मोगो स्पोर्ट्स स्पॉन्सर कर रहा था. सो देखो, रिसर्चर्स, फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स, व्हाट इज दिस? द पीपल हु यूज्ड टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स अबाउट ई स्पोर्ट्स. ओके, गेम्स के बारे में या फिर और किसी भी चीज के बारे में. ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफ कोर्स एनजीओस. Okay, second is your grants. Since we are into we are on academy, we are having a grant from Rajasthan government, correct? Because we are an institute, okay, educational institute, so that's why we got a grant. So government की जितनी भी grants होती है वो sustainability promotions, government अपने कुछ particular funds introduce करी है e-sports के लिए. We know this really well, right? So that is also comes under this NGOs and educational institutes. Okay, students, scholarships, instructors जो लोग educate करते हैं, of course student is one category. Industry related knowledge, skills and abilities. ठीक है, तो ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे हमारे different segments हैं. Okay, of course ये लोग ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का पार्ट है, नो डाउट. ओके, बट डायरेक्टली नहीं है. अब देखो, एक प्लेयर का जो है ना, प्लेयर का इन्फ्लुएंस है वो इकोसिस्टम पे ज्यादा होगा या फिर इन एक्सवाइजीज. गेस व्हाट? मतलब गेस करो, एक प्लेयर है ना, प्लेयर और कोच, प्लेयर है फॉर एग्जांपल और कोच है, उसका डायरेक्टली इकोसिस्टम पे इंपैक्ट ज्यादा होगा या फिर इसका होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का और एनजीओ, ऑफ कोर्स प्लेयर्स का. दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स कम इन अ सेम फ्रेम एंड दिस इज डिफरेंट. करेक्ट. ओके, ठीक है, समझ में आया? VR1 अकेडमी नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चल रहा था ना, सबका चल रहा है, राइट? सिमिलरली गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही थी तो भी चल रहा था, ई स्पोर्ट तो लोग खेल ही रहे थे ना, और क्रेडिबिलिटी बन जाती है, लोग और ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं. राइट, करेक्ट. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड. देखो, फीड्स इनटू, ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है प्लेयर्स में, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करती है स्पॉन्सरशिप्स में. ठीक है, और ये दो ही चीजों में ज्यादातर काम आती है. ये डायरेक्टली या तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी या फिर यहाँ पे इन्वॉल्व होगी. यहाँ पे इन्वॉल्व होगी तो गेम्स को, ये गेम्स को कुछ ग्रांट्स दे देंगे, पैसे वैसे दे देंगे. ठीक है, या फिर गेम्स के लिए रिसर्च कर देंगे, गेम्स के लिए और कुछ बेनिफिट्स निकाल देंगे. ठीक है, वन थिंग दैट वी फॉरगॉट, व्हाई मर्चेंडाइज. ओके, ऑफ कोर्स हम लोग, तूने खुद खरीदता है मर्चेंडाइज, राइट? तो क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है वहां पर. सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम. अगर ये हमने अपने दिमाग में ना फ्रेम बना लिया, ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल इंडस्ट्री. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब यू नो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है. मतलब ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में हम लोग बार बार बोलते हैं ना, इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है इन इंडिया. द रीजन, राइट आकाश? हम लोग बहुत सारे ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है जो आकर के बोलते हैं इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है. इंडिया में ई स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है ही नहीं है. क्यों? द रीजन इज, या तो ये टीम्स बकचोदी कर जाती है, करेक्ट, या फिर ये टीओस दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी ये प्लेयर्स कर देते हैं. ये कभी नहीं करेंगे पब्लिशर्स, स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स, राइट? सो यू कैन सी एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट. ओके, यहां से लेकर के यहां तक सब डिपेंडेंट है. ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक सब डिपेंडेंट. देखो भाई, अगर स्पॉन्सर पैसे लगाएगा, इन्वेस्टर पैसे लगाएगा, फैंस अगर नहीं आए, नहीं खेल रहा मैं तेरा गेम, नहीं देख रहा मैं तेरा टूर्नामेंट, नहीं देख रहा मैं तेरे टीम्स को, मैं नहीं देख रहा हूँ, लॉस इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा. करेक्ट? अगर इसको हटा देते हो, न ये एग्जिस्ट करेगा, न ये एग्जिस्ट करेंगे. मतलब एग्जैक्टली. ठीक है, अगर इसको हटा देंगे तो इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा. ठीक है, ऑपरेटर्स को अगर हटा देंगे ना, ओके, तो इतना इंपैक्ट नहीं आएगा. ये दो चीजों को हटा देते ना तो इंपैक्ट नहीं आएगा. ठीक है, बट स्टिल समहाउ इनकी भी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत होती है. ठीक है, सो नाउ वंस अगेन, गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, दिस इज अ
टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, जो कि टॉप प्रायोरिटी में अपना रहता है। फिर उसके बाद में हम लोगों को धीरे 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 करके अपना एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। उस इकोसिस्टम में वी ऑलवेज शाउट आउट कि भाई इकोसिस्टम नहीं है, इंडिया में इकोसिस्टम नहीं है। द रीजन इज क्वाइट सिंपल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग व्हाई इन इंडिया ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इज नॉट डेवलप्ड। द रीजन इज ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, coaches and managers, franchisees, teams and clubs, video games and game publishers, tournament organizers and league operators. All these people are not in a same phase. Sometime if esports players think about developing the ecosystem, then tournament organizer will not support. Okay. If tournament organizers are supporting, then esports teams and clubs will create mess up. So this is the main reason in India. That's why we are not able to develop Indian ecosystem.